ڈکی کیس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ بار بار کیس لٹکتا ہوا جا رہا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا کسی ٹائم جج جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور کسی ٹائم جو ہے وہ این سی سی کے پاس ریکارڈ نہیں. ڈکی کی جو مسز ہے اروپ جوتوئی وہ خلا کے لیے جو ہے نا وہ دائر کر رہی ہیں اور اس کے بعد کون سی ایسی ٹک ٹاکر ہے جو کہ باہر بھاگنے کی تیاری. اس ٹائم پہ نا ذوالقرنین اور کنول آفتاب اچھا انہوں نے اپنی جو بیٹی کا تھا پاسپورٹ بھی بنا دیا ہے. اچھا اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہاں سے نکلیں. سر یہ سین یہ ہے کہ 2025 میں ہی رجب بٹ کی شادی ہوتی ہے, 2025 میں ہی شہزار بھٹی صاحب ان ہوتے ہیں, فرق کھوکر صاحب ان ہوتے ہیں. کنٹروورسیز کا جو آغاز ہے 2025 میں ہوتا ہے. پھر 2025 میں جی رجب بٹ صاححب اپنا گھر بناتے ہیں, اینٹ رکھ لیتے ہیں اپنی ماں کے ہاتھ سے. دیکھو گا آپ نے ویڈیو, ٹھیک ہے, 1 کنال کا پتہ نہیں 2 کنال کا گھر ہے. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ڈکی نے بھی گھر خریدا. تیسری سائڈ پہ آپ دیکھ لیں تو سسٹرول جی نے بھی گھر خریدا. وہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ڈاکٹر نبیہ کے گھر وہ سیلاب بھی آیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 2025 میں نا امیروں کا ساتھ اٹھے گا, ڈکی باہر نہیں آئے گا. اور جب تک ڈکی باہر نہیں آئے گا اروپ کے لیے مسئلے رہیں گے. اور اروپ جو ہے وہ ذہنی ٹینشن اذیت میں, اروپ کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یار تمہارا شوہر ساری زندگی کے لیے اندر ہو گیا یا پھر یہ کرپٹ ہے. اس قسم کی باتیں کر کے اس کو پریشرائز کر کے اس کو خلا کی طرف لے کے جائے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. ڈکی کیس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ بار بار کیس لٹکتا ہوا جا رہا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا کسی ٹائم جج جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور کسی ٹائم جو ہے وہ این سی سی کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا. اور یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں یہ سننے کو ملا ہے کہ جناب ڈکی کی جو مسز ہے اروپ جوتوئی وہ خلا کے لیے جو ہے نا وہ دائر کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کون سی ایسی ٹک ٹاکر ہے جو کہ باہر بھاگنے کی تیاری میں ہے. جناب میرے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب. عثمان صاحب السلام علیکم, کیا حال چال؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں جی, آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان صاحب کیا خبر ہے جو آپ کے پاس ہے؟ خبریں تو بڑی بری خبریں آ رہی ہیں جی. سب سے پہلے یہ کہ ڈکی کی جو ضمانت کا مسئلہ ہے, لگ یہ رہا ہے کہ ڈکی باہر فی الحال نہیں آئے گا. جو کہا جا رہا ہے نا اب تک کہ نومبر میں آئے گا, ابھی آئے گا, لیکن جس ٹائم پہ حکومت اس ٹائم پہ متحرک ہو چکی ہے اور باقی بھی جو یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. ایجنسیاں ہماری ورکنگ کر رہی ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ ڈکی فی الحال باہر آنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں. اور جہاں تک اس کی جو بیوی جو اب تک اس کے لیے شیلڈ بنی ہوئی تھی, جو ایک دیوار تھی, اور وہ جس نے ایف آئی اے کی مدیریت میں کیس بھی کیا تھا ساتھ مل کے این سی سی آئی اے کے چودھری سرفراز اور باقی تمام افسران پہ, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب ڈکی سے خلا لینے جا رہی ہے. 1-2 دن تک یہ خبر باہر آ جائے گی. نا جی بالکل خبر یہی آ رہی, جو اندر کی خبریں یہی ہیں کہ مشورہ معاملات ہو چکے ہیں, کیا خلا لگتا ہے لینے وہ کی تیاری تنگ کر آ رہی گئی ہے. سر تنگ تو اس نے ڈیفینیٹلی آنا ہے. ریزن یہ دی ہے کہ جی میں تنگ آ گئی ہوں, مطلب یہ سننے میں آیا, یہ جو خبریں ابھی گردش کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں تنگ آ چکی ہوں اس لائف سے. اور اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈکی جو ہے آگے کے لمبے عرصے تک ان چیزوں میں پھنسا رہے گا. لیکن ہو سکتا ہے اس پہ کوئی پریشر بھی ہو. اس طرح تو بیوی نہیں چھوڑتی نا اپنے شوہر کیا کو. مطلب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا کہ سر یہ وہی پریشر ہے جو کہ ہائی کورٹ نہیں جانے دے رہا تھا ڈکی کو. یہ وہی پریشر ہے کہ جو اب یہاں پہ اس کو خلا کے لیے مجبور کر دے گا, کیونکہ عورت ذات ہے نا, کتنا لڑے گی, تھک چکی ہے, کتنا لڑائی کرے گی. تو بس اسی وجہ سے یہی خبریں گردش کر رہی ہیں. تصدیق 1-2 دن میں ہو جائے گی. اچھا, اور ہو سکے آج رات بھی تصدیق ہو جائے, تو جیسی تصدیق ہوگی پھر ہم فردر بتائیں گے. کون سی ایسی یوٹیوبر ہے, کون سی ایسی ٹک ٹاکر ہے جو ملک فرار ہونے میں جو ہے نا وہ کوشش تیزی سے کر رہی ہے؟ سر اس ٹائم پہ نا ذوالقرنین اور کنول آفتاب, اچھا انہوں نے اپنی جو بیٹی کا تھا پاسپورٹ بھی بنا دیا ہے. اچھا, اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہاں سے نکلا جائے. مجھے عثمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو چلو جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, لیکن سسٹالوجی کے اوپر کیس تھا, اریب کے اوپر کیس تھا, یہ ساری چیزیں ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور یہ ان کی تو ویڈیوز بھی ابھی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے پروموشن کی ہے. دیکھیں پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ پہلے تو ظاہری بات ہے کرپٹ افسران تھے, پیسے لیے ہوں گے, یہ تو سب کو پتہ ہے. ابھی کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ابھی اس ٹائم پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قسم کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ پہلے تو کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. باقی تحقیقات انڈر کھاتے چل رہی ہیں, سامنے نہیں آ رہی. اور ہمارے ادارے جس ٹائم بھی ان کی تحقیقات کمپلیٹ ہوگی ہاتھ ڈالنے شروع کر دیں گے. ہوا یہ تھا پہلے جو تحقیقات ہوئی چودھری سرفراز کی زیر نگرانی ہوئی, اب جب پتہ چلا کہ وہ کرپٹ ہے, وہ اندر چلا گیا, تو نئے سرے سے تحقیقات سٹارٹ ہوئی, نئے سرے سے افسران کو بھی بھرتی کیا جائے گا,
पिंडी इस्लामाबाद में भी पकड़े गए बंदे, उस मैटर को भी देखना है, और वेला मुंडा का जो गया बाप भी गया, उसको मैटर को भी देखने हैं। मसला ये है कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, किस किस चीज़ पे काम करें, तो वो अपने डिपार्टमेंट डिवाइड करके काम कर रहे हैं। यूट्यूबर टिकटॉकर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जल्द आपको एक घेरा आपको नजर आ जाएगा। लोग ये समझ रहे थे कि जनाब अब जिस तरीके से करप्ट अफसरान जो है ना वो पकड़े गए हैं, तो यूट्यूबर्स के ऊपर जो घेरा है जो वो तंग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सर ये तो लोग कह रहे थे ना, असल में मसला ये है कि फाइल तो वही है, किसी ने तो फाइल को कैरी करना है। ये जो मामला जब स्टार्ट हुआ, देखें पहले तो किसी को पता नहीं था कि ये मामला है, अब मामला तो ओपन हो चुके हैं। जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ ओपन होती है तो उस पर काम होते हैं, फाइलें वहीं पड़ी है, अफसरान चेंज हो गए, नए अफसरान आके उसकी तहकीकात कर रहे हैं, और उस तहकीकात के अंदर वो नए सिरे से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब पहले से ज़्यादा सख्ती होगी। पहले पैसा लिया जाता था, सस्ट्रोल जी से भी हो सके पैसा लिया गया हो, जुल्करनैन कंवल से भी लिया गया, हम कह नहीं सकते, ठीक है। अब तो किसी से पैसा ही नहीं लेना, जब पैसा नहीं लेना तो सख्ती तो ऑलरेडी होगी। ये यूट्यूबर्स के लिए इतना तंग रहा कि यहाँ से यूट्यूबर्स निकल गए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से वेला मुंडा के साथ हुआ, रजब भट्ट के साथ हुआ, डक्की के साथ हुआ, ये क्या सीन क्या है? सर ये सीन ये है कि 2025 में ही रजब भट्ट की शादी होती है, 2025 में ही शहजाद भट्टी साहब इन होते हैं, फरक खोकर साहब इन होते हैं, कंट्रोवर्सीज का जो आगाज है 2025 में होता है। फिर 2025 में जी रजब भट्ट साहब अपना घर बनाते हैं, ईंट रख लेते हैं अपनी माँ के हाथ से, देखोगा आपने वीडियो, ठीक है, 1 कनाल का पता नहीं 2 कनाल का घर है। दूसरी साइड पे आप देखें तो डक्की ने भी घर खरीदा, ऐसा ही है। तीसरी साइड पे आप देख लें तो सिस्ट्रोल जी ने भी घर खरीदा, वो उसके बाद आप देख लें डॉक्टर नबिया के घर वो सैलाब भी आया। तो कहने का मकसद ये कि 2025 में ना अमीरों का साल था इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अब उस अमीरी में सारे रगड़े गए, इन्होंने गाड़ियां दिखाई, इन्होंने घर दिखाए, याशियां दिखाई, फंक्शन दिखाए, और इनका कंटेंट है, इनकी मजबूरी है इसको दिखाना, ये दिखाएंगे तो लोग देखेगा। उसी के अंदर ही फिर इनको रगड़ा लग गया। जब पता चला भाई इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर आपको पता है काली भेड़ें जो थी एकदम उठी हैं, उन्होंने पहले ढूंढा है कि इनको पकड़ा कैसे जाए। लोगों ने ये सोचा कि जो अफसरान है उन्होंने ये सोचा कि इनके पास माल है। सर दूसरा वो जवार जो है कार जोन का वो जो दोस्त है, उसने बोला भाई उसको तो पता था कार जोन वाले को जी यूट्यूबर पैसा कमाता है, रजब गाड़ियां लेता रहा, वो रजब को टीके लगाता रहा। अच्छा आप, मैं माजरत आपकी बात रोक रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जो सोशल मीडिया पर ये जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने जो अपना लाइफस्टाइल दिखाया यही इनका जो है ना वो वही डूब गए सर। इन्होंने जो पैसा दिखाया, लाइफस्टाइल दिखाया, सारा कुछ दिखाया, वहीं से आके डूब गए। दूसरा इन्होंने गेमिंग ऐप से भी तो पैसे लिए ना, एक 20 सेकंड की वीडियो के लिए 25 लाख रुपए एक यूट्यूबर को दिए गए, आप अंदाजा लगे। सर हमें भी कितनी ऑफरें हुई हैं, कितना वो कह रहे थे जी आप भी करो, शुक्र है हमने की नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ना, वरना इंसान तो लालच है। और उस टाइम पे की मैंने रिजेक्ट किया जब मुझे पैसा चाहिए था, बिल्कुल जब मेरी जरूरत थी, मैं बड़ा दिल से, लेकिन जब पता चला जुआ है तो फिर मैं कहा चलो साइड पे कर दो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो डकी भाई हैं, अब जो शहराम सरवर साहब जो है वो नए जज आए हैं कि अब इन कुछ ये जज जो है वो छुट्टी पे चले गए, ये क्या सीन क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई मामला कोई। सर जज साहब तो ये बोल रहे हैं जाती मसरूफियात की वजह से, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे आप देख लें मंडे वाले दिन फिर उनका केस नहीं सुना गया। हाँ, नहीं सुना। ये भी है, ठीक है। बात ये सारी के वो जो थे ना पार्टनर जो थे डकी के, बात ये कि जो हमारे गवर्नर साहब है ना वो बड़े स्ट्रांग है। समझा नहीं मैं। आपको पता है सारा कुछ, जो पॉलिटिशियन थे जो कि डकी के पार्टनर थे, अच्छा हाँ जी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इनके साथ, इन्वेस्ट भी किया था, पैसा भी डूब गया था। तो मकसद ये कहने का कि वो अपना हाथ धो के डकी के पीछे पड़े हुए। अच्छा तो वो ताकत तो रखते हैं, पावर तो रखते पावर हैं, और जब तक उनका हाथ नहीं उठेगा डक्की बाहर नहीं आएगा, और जब तक डक्की बाहर नहीं आएगा अरूब के लिए मसले रहेंगे। और अरूब जो है वो जहनी टेंशन अजियत में, अरूब के माइंड में ये बात डाल दी गई है कि यार तुम्हारा शोहर सारी जिंदगी के लिए अंदर हो गया, या फिर ये करप्ट है, इस किस्म की बातें करके उसको प्रेशराइज करके उसको खुला की तरफ लेके जाया जाए। जिस तरीके से उस अरूब का जो बैकग्राउंड है वो जनूबी पंजाब का एरिया और वो जतोई खानदान, ठीक है, तो वो अब जो है ना वो लगता है कि वो उसके जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि मैंने इसके साथ शादी करके गलती की। सर शादी करके गलती की बात नहीं है, जब शादी करके गलती की अरूब को कौन जानता था? डक्की के इशारे पे तो उसको जाना है, उसकी याशियां, गाड़ियां, बंगले, घूमना फिरना, बच्चा तो अभी तक उसने पैदा नहीं किया, मजे कर रही थी ना, ऐसी लगता था। जब अदालतों के धक्के खाने पड़ गए ना उसकी बात सो। आपको पता है उसकी अपनी फैन फॉलोइंग इतनी है कि अब वो बाहर जाके अपना चैनल ही खोले तो चल जाएगा, पैसे की कमी तो अब रही नहीं है। अब तो नहीं रही, ठीक है, तो अरूब ने वो काफी कुछ गेन कर लिया, अब मुश्किल टाइम में क्यों डक्की के साथ ख्वार हो, वो ये सोच रही है, मैं नहीं कह रहा। ये आप बड़ी पावरफुल एक खबर दे रहे हैं कि सर मैं नहीं दे रहा, इसके पीछे बातें चल रही हैं और आज रात या कल तक ये कंफर्म भी हो जाएगा। ये जो बातें हैं सारी ना, ये बातें वैसे नहीं की जाती, अभी कंफर्म हो जाएगा, 1-2 दिन में देखें बातें सारी खुल जाएंगी,
सिर्फ किस तरीके से वो इसको लॉन्च करते हैं इस बात को, ये देखने वाला होगा कि वो उस्मान क्या साहब, बहाना क्या आपने- रीजन करके लाते हैं। आपने जो बात की है ना, आपकी खबर में हमेशा पुख्तगी होती है, मैंने देखा है, और आप एक वकील के साथ भी डिस्कशन कर रहे थे, शायद वही है, मुझे लग रहा है ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ वकला से भी हम लोग करते हैं, देखें सोर्सेज तो होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो खबर आई है मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। ओह, बहुत बड़ी खबर है कि वो बीवी जो अभी तक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है डक्की के पीछे, वही लड़की अब उससे अलहदा होने जा रही है। ये वो लड़की है जिसको डक्की ने सारा कुछ दिया, याशी दी, वर्ल्ड टूर दिए, पैसे दिए, मतलब दुनिया की हर जो आसाइश है वो डक्की ने इसको दी। और आज जब मुश्किल टाइम आया जहां इसने डक्की के लिए अभी तक स्टैंड लिया, अब ये सुनने को मिल रहा है कि यार ये जाके उससे खुला ले रही है। ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सर मसला क्या बनना है, डक्की कहीं और शादी कर लेगा, कौन सी उसकी औलाद है, मसला शसला कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह कि औरत की एक वफा भी होती है, तो जो इस्लाम वो को अब देखे नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि डक्की कुछ के नहीं जो देख रहे, अगली डक्की- जो हायरिंग डक्की- होगी, क्या सर- लगता है सर- जमानत हो जाएगी? नहीं जी सर, नहीं? मुझे नहीं लगता इन हालात में डक्की की जमानत नहीं होगी। अब इसका केस नहीं सुना जा रहा है, एक जज कह रहा है मैं सुनता ही नहीं हूँ, दूसरा भी कोई ना कोई बहाने करके वो कर लेते हैं, समझ गए मेरी बात को। तो बात ये कि उसका केस सुनने का कोई तैयार नहीं है, इसने बाहर कैसे आना। मैं कल एक वीडियो देख रहा था मियां अब्दुल मतीन साहब की, वो कह रहे थे कि जनाब ये डकी को जिस डेट को अरेस्ट किया गया, वो जो डेटें हैं वो छुट्टियों की होती हैं, जजेस की छुट्टियों की होती हैं। अब जो वो डिप्टी जजेस बैठे होते थे, उनको इतना नॉलेज नहीं होता था, वो जो है ना वो ऐसा इसको रगड़ा लगाते गए, ठीक है, और वो जो है उसके बाद वो डिलाइंग टैक्टिक्स खेलते गए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा ना कि भाई इतना पैसा भी रिकवर हो गया, तो फिर डकी तो वाकई मुजरिम है, तो उन्होंने जो है ना नहीं, उन्होंने बात तो की है, देखिए उन्होंने अपनी तरह बात की है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन देखें जज बच्चा नहीं होता, आप बोलो ना डिप्टी जज है, फलाना जज है, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, पहले ये वकील होता है, ये कुछ सीख के आया हुआ, तो इस तरह नहीं है कि ये आके तो कुर्सी पे बैठ गया, उसे सारा कुछ पता है। जैसे जज के सामने फाइल आती है, दलाइल होते हैं, जज को पता चल जाता है, ठीक है। और ये कहना कि जी जज को पता नहीं था, तो जज को नहीं, जो जज बैठता है उस मनसब पे, वो भाई वो बड़ा सियाना है, बहुत खरू है, वो सीख के आया है, उसकी एजुकेशन है, फिर उसकी ट्रेनिंग है, फिर वो वकील रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ गया ना। वो कड़ा CSS करके अचानक आ गया, CSS थोड़ी किया उसने तो बेस मैट्रिक की, फिर इंटर की, फिर उसके बाद अपनी जो मुतलका क्वालिफिकेशन है वो की, फिर आगे आया। तो ये बात कहना कि उनको नहीं पता, जजेस को सारा कुछ पता है, वकला को सारा कुछ पता है, कुछ प्रेशर्स थे। अब जारी बात है गवर्नर कोई छोटी चीज़ तो नहीं होता ना, गवर्नर तो आप समझ लें कि उस पूरे सूबे का बाप है, फिर तो फिर उससे कौन बच सकता है भाई। इसलिए वो छोटी बात नहीं है, गवर्नर से अगर मसले हैं डकी के, तो फिर उसके सामने बहुत से लोग बेबस भी हो जाते हैं। और हर बंदा इस टाइम पे ना गंद में नहीं पड़ना चाहता, कि जज को क्या लगी किसी से दुश्मनी ले, किसी वकील को क्या लगी किसी से दुश्मनी ले, बिल्कुल है, किसी को ट्रांसफर भी हो सकता है। सर मुझे एक बात बताएं आपको, एक AC एक DC ऐसा ही चेंज करने पे एक पॉलिटिशियन को कितना टाइम लगता है? विद इन सेकंड्स सर विद इन मिनट भी नहीं, विद इन सेकंड एक फोन कॉल जाती है, मुतलका जो DC है जी इसकी ट्रांसफर कर दो, बस खत्म। जिधर फंस जाते हैं ना इसकी जी। मैंने केस देखा था मानसेरे के अंदर, अच्छा, वहां पे एक पुलिस ऑफिसर था, मैं रैंक नहीं लूंगा पता चल जाएगा, उसको वहां से हटाना चाह रहे थे, लोगों ने एहतजाज किया, हटा नहीं पाए। फिर क्या किया, उसकी तरक्की करके उसको दूसरी जगह पे लगा दी। ओह, और वो खुश जी इसकी तरक्की होगी, जब तो जाना ही पड़ेगा, वो तो खैर समझता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही हैं। हमारे जो भी बंदा है, चाहे SHO है, उसने जवाब देना है SP को, SP ने फिर आगे मुख्तलिफ जगहों पे जवाब देने होते हैं, DIG IG सारा कुछ, ठीक है। तो इसी तरह हर बंदे ने जवाब देना है। सर जो भी यहाँ पे मुलाजमत करने आएगा जवाब देगा, और हर बंदे को अपना घर प्यार है, अपने बच्चे प्यार है। और अब तो ये हो गया कि सुपारियाँ, डाकुओं से सुपारियाँ, वेला मुंडे के भाई को बाप को देखा है आपने, उसके बाप को क्या डाकू ने अगवा किया है, जिसने भी अगवा करवाया है उसने डाकू को पैसे दिए, भाई इसको अगवा करके ले। अब तो सिस्टम ही आसान हो गया है, पैसा दो जिसको दिल करे अगवा कर लो। सवाल निशान नहीं उठ रहा CCD के ऊपर। सर CCD क्या नहीं, CCD क्या करे, CCD को आए हुए कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने हुए। चले 8 साल लगा लें। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट गया, ये यहाँ पे एक था, मतलब मैं इतने लोगों को मैं आपको कैसे, जिस दिन से CCD वजूद में आया CCD फारग नहीं हुआ। CCD किस किस को पकड़े, कैसे पकड़े? CCD ने लास्ट टाइम पे बोला था जी हमें फंड दो, हम कच्चे के डाकू खत्म करते हैं, फंड दिया, 10 अरब का मांगा था, और फिर एक सूबे ने उसको अपनी तरफ जो है ना वो कर लिया, सिंध ने अपनी तरफ कर। मैं कहने का मकसद ये है कि CCD काम कर रही है, पर CCD को टाइम लगेगा, जराइम बहुत ज्यादा है, आस्ता आस्ता खफ। और लोग कहते हैं जी नेफे में पिस्टल चलता है, जी ना चलें, CCD के पास इतना टाइम नहीं है कि तफ्तीश करे, ये वो वीडियो देखी जुम साहब दुआ सजा दो भाई, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बंदे लेके अदालतों में फिरते रहे। सीधी सी जो बात है, वो जो भी मुजरम होते हैं कहते हैं एट द स्पॉट किस्सा मुकाओ। तीफी बट का मामला, तीफी बट क्या यहाँ पे आता, अभी तक केसेस ना चल रहे होते,
अगलों ने क्या किया, तीफी बढ़ भी गया, अमीर बलाज का डेरा भी सील हुआ, जो अमीर फतेह है उसकी सारी जायदाद जब्त हो रही है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। उस्मान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है और आप बड़ा जो है ना अच्छा काम भी कर रहे हैं और डकी केस के बारे में आप जो है ना बड़ा इल्म भी रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने जो खबरें दी हैं और ये खबरें बड़ी अथेंटिक होगी और देखते हैं कि अब डकी केस में होने क्या जा रहा है। आपने चैनल पोस्ट पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करना, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।